پولس رسول کا افیسیوں کی کلیسیا کے نام لکھا گیا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے: تاکہ اب کلیسیا کے وسیلے سے خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے غور سے یہ حوالہ سنا ہو تو یہاں پہ کلیسیا کی رسپانسبلٹی میں ایک بہت بڑا کام کہ میری طرف دیکھنا ہے، پلیز میری طرف دیکھیں۔ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو غور کرتے ہیں اس پہ کہ کہنے کیا لگے۔ لکھا ہے کہ اب کلیسیا کے شاباش کلیسیا کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی طرح طرح کی حکمت، یعنی کلیسیا کے اندر اتنی عقل ہو، اتنی حکمت ہو، اور یہ ایک طرح کی نہیں، طرح طرح کی حکمت، اور اس میں ڈیوائن وزڈم کے اندر جتنے بھی باتیں آتی ہیں یا ورلڈلی وزڈم کے تعلق سے جتنی بھی باتیں آتی ہیں، کلام کہتا ہے کہ وہ حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو کہاں ہیں؟ یہ کون سی ہیں؟ ہاں، حکومت والے اور اختیار والے کون ہیں؟ کلیسیا۔ یہ کوئی نئی کلیسیا ہے؟ ذکر کیا ہے نا افسیوں کے خاتمے اینڈ پہ کہ یہ کون سی ہے؟ اب آسمانی مقاموں پہ۔ ہاں، ابلیس کو پتا چل جائے کہ خدا کے لوگ وزڈم رکھتے ہیں، کلیسیا کی رسپانسبلٹی ہے اس بات کو ظاہر کرنا کہ وہ ابلیس کو گھور کے کہا سکیں میرے اندر تو اس سے کہیں زیادہ عقل ہے۔ ہاں، میں گل سمجھ آؤں ہے کہ نہیں؟ غور سے سننا ہے اس حوالے کو، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا کی طرح طرح کی حکمت، وہ حکمت ہو اور خدا کی حکمت ہو۔ اے دنیا والی جڑی حکمت ہے نا، جو اپنے مطلب والی حکمتوں دی گل نہیں کرتے پہ، وہ حکمت جو ڈیوائن وزڈم ہے، طرح طرح کی، اس کو پروف کرنا ہے دشمن کے سامنے جا کر کہ میں کون ہوں۔ چلو، میں وزڈم سے، I am the person who is filled with divine wisdom، میں وہ شخص ہوں جو خدا کی حکمت سے بھرا ہوں۔ تجھے پتا لگے کہ ہے کلیسیا ہے پر ہے سرے دی بیوقوف ہے، پلیز اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو رول تھا، یہ خدا کا بندہ افسیوں کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں پروف کرنا ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے that you have the divine wisdom in your life، تیری زندگی کے اندر الہی حکمت موجود ہے، اور تجھے پروف کرنا ہے حکومت والوں کو، اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں، ان کو معلوم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے۔ یعنی کہنے کا مطلب کہ ابلیس نو ساڈا پتہ لگ جائے کہ اسی کی ہیں، اسی کلیسیا وا، اسی کی ہیں۔ ہیلو، سب گونگے بولے کہ ہم کیا ہیں؟ کس کو پتہ چل جائے؟ ابلیس کو پتہ چل جائے، ابلیس کی قوتوں کو پتہ چل جائے، اس کے اختیار کو پتہ چل جائے، اس کی ساری جتنی بھی جو پرنسپلٹیز ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ حکمت رکھتے ہیں۔ غور کرنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے مضمون جو پڑھا، شاید کسی کو یاد ہو، ہاں، کسی کو یاد ہے کیا پڑھا تھا؟
कुछ आए थे उनको भी कुछ याद होगा, जो नहीं आए थे वो YouTube पे उसको मैंने डाल दिया है, वो जाकर सुन सकते हैं। एक मजबूत कलीसिया की पैमाइश का पैमाना क्या है? और आज हम कलामे मुकद्दस में से देखेंगे कि द पीपल दोज आर कॉलिंग देमसेल्व्स द मेंबर्स ऑफ द चर्च, जो अपने आप को चर्च के अराकीन कहते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे ही नहीं है वो, या उसको सादा लफ्जों में मेंबर ना भी कहें तो शागिर्द कह लें, जो अपने आप को मसीह के शागिर्द कहते हैं और बतौर कलीसिया अपने आप को अलग किए हुए लोगों की जमायत समझते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। आप जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, हमारी जिम्मेदारियां। फर्ज कर लो एक बंदा बाप है ते ओदियां कोई जिम्मेदारियां है, तो उदा ही कहे जी मेरे 7 न्याणे ते करदा करांदा मैं, इंज दे अब्बे नूं मुआशरे च की समझा जाएगा? चंगा अब्बा? यार चंगा बस न्याणे जम ला ते वेले दा ना को करना ना कुछ कराना है। इसी तरह अगर कोई मां है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो बोलते ही नहीं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कोई भाई है तो उसकी भी, बहन है कोई तो, अगर एक स्टूडेंट है तो, आप जो कुछ भी हैं, हम जो कुछ भी हैं, उसके लिए हमारी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारियां हैं। और अगर हम चर्च हैं तो इतने साड़ी आवाज ही नहीं निकलती पाई, क्या है? अगर हम चर्च हैं, चर्च के रुकन हैं, तो उसके अगेंस्ट या उसके टुवर्ड्स हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगरचे ये जिम्मेदारियों की बड़ी लिस्ट है, लेकिन शायद हम सारी जिम्मेदारियों को जो है वो आज जो है वो डिस्कस ना कर पाए। लेकिन मैं चाहता हूं जितनी जिम्मेदारियों को हम सुने, उनको गौर से सुने और अपनी जिंदगी में देखें, मैं ये जिम्मेदारियां पूरी भी कर रहा हूं या नहीं। आमीन। क्योंकि अगर हम कलीसिया हैं, कोई है यहां पे कलीसिया? दिखाओ हाथ जरा मुझे, कलीसिया। तो कलीसिया की कुछ अब्बा है तो अब्बे की कुछ, अम्मा है तो अम्मा की कुछ, तालिब इल्म है तो तालिब इल्म की कुछ, टीचर है कोई तो टीचर की कुछ, अगर टीचर कोई स्कूल का हेड है तो हेड की एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं। तो जे बंदा कहे नहीं हुण सारा कुछ ही मैं करा, अम्मा भी मैं ही बना ते हेड भी मैं बना, नो, इफ यू आर समथिंग, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो आज हम एक कलीसिया के रुकन की, द मेंबर ऑफ चर्च की कुछ जिम्मेदारियों को देखेंगे। और अगर हम हैं तो हमें इस बात के लिए जो है वो पूरे तौर पे दिल लगा के गौर करना है। एक कलीसियाई मेंबर की बनना कैसे है, शामिल कैसे होना, उसकी बात नहीं हम कर रहे। अगर बन गए हैं तो जिम्मेदारियां क्या है? नंबर 1, पहली जिम्मेदारी, उसे बाकायदगी से कलीसिया के अंदर आना है, बाकायदगी से कलीसिया में जमा होना है। और अगर वो बाकायदगी से कलीसिया में जो है वो नहीं आ रहा, नहीं आ रही, तो याद रखना है वो मेंबर तो है लेकिन एक गैर जिम्मेदार मेंबर है। आपको कहा जाए तू बड़ा गैर जिम्मेदार अब्बा, कैसा लगेगा? हाँ, बहुत गैर जिम्मेदार भाई हो तुम, इस सुन के बंदे ते जे को गैर जिम्मेदार कलीसियाई मेंबर, तो इसका मतलब हमें बुरा लगेगा। सो पहली जिम्मेदारी एक कलीसिया के मेंबर की यह है कि वो बाकायदगी से चर्च आए। एक घर में एक बंदा अब्बा लगा हो और अब्बा अपने घर में ही ना जाए, या हफ्ते में 3 दिन घर जाए बगैर किसी वजह के, तो क्या कहेंगे? यार है चंगा अब्बा वारा ही फिरदा रहिंदा। तो कहोगे कि नहीं कहोगे? तो बोलते ही नहीं, जो पादरी कल्ला ही कही जाता है। ऐसा है ना, अब्बा बार बार तुरा फिर 24 घंटों में बगैर किसी मतलब के अब्बा वैसे ही घूमता रहे, तो ऐसे अब्बे को ठीक नहीं समझा जाता।
लापरवाह समझा जाता है, केयरलेस समझा जाता है। इसको अंडरस्टैंड करना है। और कलाम कहते हैं, अमाल उसके दूसरे बाब की 46वीं आयत का पहला हिस्सा, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते। कौन? कलीसिया के लोग क्या करते? हर रोज। कब? सारे बोलो जरा, कब? अपने लिए 37 दिन ही आना औखा है, हमारे लिए एक हफ्ते के बाद आना मुश्किल है। हमने इतनी इस लेवल पे आसानियां अपने लिए पैदा कर ली हैं, बाकी दिन तो बड़ी दूर की बात। जो 7 दिन में से एक मुकर्रर की है, उसमें भी हम कलीसिया को, हम चर्च को, हम चर्च के कामों को, हम इबादत को सानवी समझते हैं। प्लीज इसको समझना है। इसी गर्ज से दूसरा हवाला अब्रानियों 10वें बाब की 24वीं-25वीं आयत, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज, हेलो, एक दूसरे से जमा होने से बाज, जमा होना है, बाकायदगी से जमा होना है। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ कहेंगे सान तो पता ही नहीं लगा, अच्छा आ होया सी, अच्छा ऐ फैसला कर दिता, सानू किसी ने दसिया ही नहीं। तो बताएगा कहां? लोगों की खाई ये है साढ़े घर आउण, पादरी साहब घर आउण ते घर आके दस के जान के ऐ काम हो गया। प्लीज इन रवैयों से बाहर आए, क्योंकि कलीसिया के टूवर्ड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कुछ हमें करना है, वो चर्च के अंदर ही अनाउंस होता है, क्योंकि वो चर्च की जिम्मेदारी है, वो चर्च की अनाउंसमेंट है, तो वो चर्च में ही होगी। लेकिन कभी कभी हमारी जाती ख्वाहिशें होती हैं, एंज हो जाते, एंज हो जाते, एंज हो जाते। प्लीज इसको समझो और इससे बाहर आओ, क्योंकि बाकायदगी से ना आने के कोई नुकसान भी हो सकते हैं। क्या? फर्ज करो एक बच्चा बाकायदगी से स्कूल ही नहीं जाता, गौर करो जरा, चलो वड्डी छुट्टियां तो बाद न्याणे दा स्कूल जाण नूं दिल किन्ना करदा है। 2 एतवार छुट्टी कर लईए ना, ते तीजे को तो चल चले जाने। अदम दिलचस्पी का शिकार हो जाता है कलीसिया मेंबर। कलीसिया मेंबर के अंदर जो है वो दिलचस्पी नहीं रहती, उसके अंदर जो है वो अलाव बुझ जाता है, जो एक कलीसिया के अंदर जो है जाने से। अच्छा, कुछ लोगों ने घर दे विच ही ट्यून कर लिया टीवी, और अभी देख ली थी एंकर नरोला दी मीटिंग। प्लीज इसको समझो, खतरनाक हालत है। कलीसिया मेंबर का काम सिर्फ मीटिंग सुन लेना नहीं है, कलीसिया मेंबर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं चर्च के लिए, खुदावंद के काम के लिए। कुछ लोग आज, प्लीज ये एंकर नरोला की मीटिंग्स इस लिए हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनके पास चर्च नहीं है, जिनके एरिया के अंदर चर्च नहीं है, जिनके पास चर्च की सहूलत मौजूद नहीं है, या अगर उन्होंने सुननी है तो संडे से हटकर जो है वो सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ऐसी घर बैठ के एंकर ही सुन लीदा, अच्छी बात है, सुने, मैं ये नहीं कह रहा ना सुने। या कभी कभी हम कहते हैं नहीं असी ओ वड्डी मीटिंग पे चले गए, सी कभी कभी चर्च छड़ के असी दूजियां दी मीटिंगां, घर दा विआह छड़ के गुआंढियां दा अटेंड करना पसंद करते। प्लीज इसको भी समझो, क्योंकि बहुत दफा हम संडे सर्विस को, संडे मीटिंग को जो है वो 0 इंपॉर्टेंस देते हैं। प्लीज, क्योंकि इसके नुकसानात हैं। जब आप अपने चर्च की संडे सर्विस को छोड़ते हो, आपकी दिलचस्पी चर्च के साथ खत्म हो जाती है, खुदा के काम के साथ आपकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और खुदा के मकसद को वो हर तरह से एक ईमानदार जो है वो सानवी नजर से देखता है, सेकेंडरी होता है उसका जो है वो। खुदा के साथ मोहब्बत प्राइमरी नहीं रह जाती, सेकेंडरी हो जाती है, दूसरे दर्जे की हो जाती है, पहले दर्जे की नहीं रहती। वजह क्या है? क्योंकि उसकी चर्च से दिलचस्पी। और
अब आपने देखा होगा चर्च के अंदर सब तादाद बीबियों की ज्यादा होती है, इसको भी समझना है। बीबियों की तादाद भाइयों की कम क्यों होती है? हाँ, भाइयों की कम क्यों होती है? और दूसरी तरफ अगर आप देखें गौर कर, क्योंकि इब्लीस जो है, इब्लीस खिलाफ है इस बात के एक चर्च का रुकन, एक चर्च मेंबर चर्च तक पहुंचे, क्योंकि उसको पता है इफ ही और शी इज कमिंग टू चर्च, उसकी मुलाकात खुदावंद के साथ हो जाएगी। वो जा रहा है खुदावंद के साथ मुलाकात करने के लिए, वो खुदावंद से उसकी प्रेज करने के लिए जा रहा है। और एक और बात गौर से सुनिए, कई दफा मैं फैमिलीज का विजिट करता हूं तो बाजी ਤੁਹਾਡੇ हस्बैंड नहीं आए, मैं तो इंडा कहनी है पर हेलो तुसी सच्ची सच्ची दस्यो, अगर कोई बीबी अपने हस्बैंड को कोई गल मनवाना चाहे तो किन्नी औखी है? चलो बोलते ही नहीं। वो मनवानी हो तो किन्नी औखी है? अनमोल कितनी औखी होगी? हाँ, गौर करना कितनी मुश्किल है। बाकी सारी मनवाएंगे। वजह क्या है? यहां पे बहुत सारे एलिमेंट्स वैसे ही स्पिरिचुअल है। वो जब तक दुआ में बैठकर दुआया हल्के में जाकर उसके बाद इसरार नहीं करेगी, कभी भी वो चर्च में नहीं पहुंचेगा। तो खैर ना बाजी और आप ही कितने खाबे खरगोश में बैठे हैं, तो मियां कितों चर्च आना है? और फिर पता उस वक्त चलता है जब घर बर्बाद हो जाता है, जब औलाद बर्बाद होती है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। प्लीज इसको समझना है, क्योंकि चर्च इस बात को समझ लीजिए, आप दुनियावी कुछ भी रिसीव कर लें, कुछ भी हासिल कर लें, पीएचडी भी कर लें, जब तक आपके पास चर्च लेवल का स्कूल नहीं है, चर्च लेवल की एजुकेशन नहीं है, आपके बच्चे, आपकी फैमिलीज, आपकी नस्लें खतरे में हैं। तो कई बार बच्चे घर होंगे आराम फरमा रहे, मैं सुत्ता सी छड़ के आ गया, सुत्ती सी छड़ के आ गए, सिर बड़ा दर्द। याद रखो, जब बच्चा स्कूल जाते हुए सर दर्द कर दे बहाना कि नहीं, मां की कहती अच्छा बेटे नहीं चल कोई गल नहीं, हुण कल चल जाई। हेलो हुंदा है ना, है कल चल जी, क्या किसी मां ने कदी इंज है? चल आके आराम करी, आके तेन दवाई लैके पैसे दे के भी भेजेगी। क्यों? क्योंकि अफसोस ईमानदारों की जिंदगी के अंदर चर्च की वैल्यू जीरो है। चर्च मेंबर हैं लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है, और उसका फिर खमियाजा भुगतते हैं। हमें सारे काम किस दिन याद आने हैं? संडे वाले। एक ही दे दिन हुंदा जी, बाकी लोकां नूं दे दी दे, ते एक ही दिन हुंदा जिथे असीं ब्याह शादी, अच्छा जिन्हें बनाया ही वो किधर गया है? चर्च कहां गया? चर्च की वैल्यू ये है कि 6 दिन हमने ड्यूटी करनी है, 7वें दिन क्या करना है? फंक्शंस करने हैं। वो शादी का हो गया, कोई फौतगी का हो गया, कोई साल कुछ भी हो गया, कब करने हैं? संडे को करना है। नो, प्लीज इसको समझो, क्योंकि इफ यू आर द मेंबर ऑफ द चर्च, दैट इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम टू चर्च। आपकी पहली जिम्मेदारी है कलीसिया के अंदर जमा होना, वरना कलीसिया की अहमियत खत्म हो जाएगी, वरना कलाम की अहमियत खत्म हो जाएगी। आपकी खुदावंद के साथ जो चाल, जो रफ्तार आपकी है वो सुस्त पड़ जाएगी। आप जो है वो अपने उस एरिया के अंदर बेकदर हो जाएंगे। प्लीज इसको समझो, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, हर बंदा अपनी मर्जी से आएगा, अपनी मर्जी जो दिल करना छुट्टी कर लेंदा। उनके दिमाग में ही नहीं आया कि चर्च बाकायदगी से आना है। जब जिसका दिल करेगा छुट्टी कर लेगा, और बहाना उसके पास है, मैंने ये कर रहा है, मैंने वो। अब गौर करनी है, बहाना जब कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका ठीक काम हो। उनका ठीक काम होगा, उनका रियल काम होगा, उनका इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन याद रखना है आपके हर काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है कलीसिया के अंदर जमा होना है।
बतौर कलीसिया मेंबर इस बात को समझो, क्योंकि आप आहिस्ता 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 खुदा के साथ अपने रिलेशन को वीक कर लेते हो। आप अपने ताल, जिस तरह एक बच्चा जब ज्यादा छुट्टियां करता है पढ़ाई में कमजोर होगा या नहीं? नहीं, ये ट्यूशन चला जाता है तो चला जावे, ट्यूशन जितनी मर्जी चला जाए, जो स्कूल के 7 पीरियड 6 पीरियड्स का काम है कहां जाएगा? प्लीज इसको समझो। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है चर्च की? उसने क्या करना है? कलीसिया मेंबर की मेहरबानी करके हर मेंबर बोले हो जरा, जरा को मेंबर है ऐसे रख के कहो, मैंने बाकायदगी से आना है। जिम्मेदारी है, ये चर्च की जिम्मेदारी है। याद रखो, आज चर्च बालक क्यों नहीं है? क्यों ऊट पटांग बातें करता रहता है चर्च? क्यों चर्च के अंदर जो है वो आपको अपतरी नजर आएगी? क्यों चर्च की सोच मिच्योर नहीं होगी? वजह क्या है? चर्च के अंदर चर्च की कदर ही नहीं है, चर्च जाने की वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी बालक नहीं होता। दूसरा अहम काम, ये भी तवज्जो से, दूसरा अहम काम, प्लीज एक बात जिसको कलाम हुक्मन कहता है, कलाम कहता है अपने पेशवाओं की ताबे फरमानी करनी है। आज मोस्टली चर्च के अंदर और चर्च के बाहर पेशवा की ताबे फरमानी कम होती है, उसकी चुगलियां ज्यादा होती हैं, उसके साथ शिकवे आपके अंदर ज्यादा होते हैं। लेकिन कलाम क्या कहता है? गौर करना जरा, इब्रानियों 13वें बाब की 17वीं आयत, इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 17 लिखा है, अपने पेशवाओं के, जिनके पास बाइबल है मेहरबानी से जरा वॉल्यूम पूरा खोल के, अपने पेशवाओं के और ताबे। ये पेशवा क्या है? पेशवा क्या होते हैं? जो स्पिरिचुअल आपके मेंटर्स हैं, जो आपके चर्च के पासबान हैं, जो आपके चर्च का पादरी है, उनकी बात है। क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए, किनके लिए? एक जिस्म के फायदे के लिए लगे हुए हैं पेशवा, रूह के फायदे। ओए गौर करियो जरा, ओ जिस्म ली तुसी बहुत कुछ कर लेते हो, रूह ली कर दे कुछ नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं? तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए क्या करते हैं? उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। वो जागते हैं, वो दुआ करते हैं, शिफायत करते हैं, आपकी जो है वो तमाम तर खुशियों में, आपकी गमियों में जो है वो आपके लिए इंटरसेशन करते हैं। और याद रखो, इंटरसेशन करना ऐसे ही है जैसे सांप के हाथ में बल में हाथ डालना। इंटरसेशन करना आसान नहीं है। एवं हाथ रख के कई कर देना दुआ, हाथ रखो तो दुआ कर देने हो, उसकी रूहानी पोजीशन की नहीं हमें समझ, उसकी रूहानी अहमियत की हमें समझ नहीं है कि एक पेशवा जब इंटरसेशन करता है, एक पादरी जब दुआ करता है, तो अगर वो पादरी नहीं है तो उसके लिए कितना बड़ा खतरा है। रूहानी तौर पे वो अपना सब कुछ भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन ये उनकी बात है जो वाकई पादरी हैं। वो तुम्हारे लिए क्या करते हैं? जागते रहते हैं, जिन्हें उनकी तरह जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करे। क्या करें? खुशी से ये काम। आगे क्या लिखा? ना के रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें फर्ज कर लो एक पादरी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गुस्से, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ हेलो, एक पादरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ, सलाम जी सर जी सर जी सर जी। प्लीज इसको समझो,
अगर आपके अंदर उसकी कदर नहीं है, आपके अंदर उसके लिए इज्जत नहीं है, अगर उसकी कही कही बातों की ताबे फरमानी आपकी जिंदगी में नहीं है, आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने पेशवाओं के ताबे रहो। क्यों? क्योंकि, और एक बात याद रखना, ये जुमला अगर आपने गौर किया हो तो ये हुक्म है। आपको बाइबल के अंदर कुछ चीजें स्टेटमेंट नजर आएंगी, कुछ तमसीलें नजर आएंगी, लेकिन क्या लिखा? हुक्म है ये, पेशवाओं के ताबे रहो। अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं तो पेशवाओं के ते पता ही नहीं लगता कलीसिया भजी किथे फिरदी है। कोई मैंबर का मुंह ऑन है तो किसी मैंबर का मुंह ऑन है, कोई उधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है। उन्होंने इस चीज की सारी उम्र ही नहीं पता लगना कि पेशवा उसकी जिंदगी के अंदर क्या अहमियत रखता है, उसकी रूहानी पोजीशन क्या है। कलाम कहता है अपने पेशवाओं के ताबे रहो, क्योंकि वो आपके लिए जागते हैं। और ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई प्रोवर्ब नहीं है, दैट इज कमांडमेंट। ये हुक्म है जो कलाम में दिया गया है। मैंने देखा है, मैंने अपनी कलीसिया के अंदर ही देखा है, कई शिकवे ना भरे ओ सर जी तुसी ओ नहीं कीता, तुसी ओ नहीं, वो दिल करे सर जी लगे होन। उनको इस बात की जो है वो इस बात की सेंस सारी उम्र ही नहीं होती, क्योंकि उनके ख्याल में पेशवा, और इसीलिए खुदा ऐसे ही नहीं कहा कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है। उसकी रिस्पेक्ट, उसकी ऑनर को खुदा ने इसीलिए डबल कर दिया, डबल वैल्यू दी, उसको दोगुना कर दिया। फिर ऐसे ही नहीं कहा कि उसका खादम जो है उसकी आंख की पुतली की तरह है, ऐसे ही नहीं कह दिया। उसके पीछे कुछ सीक्रेट है। और कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग आज ऐसे ही मिलेंगे, दिल करे वो पादरी नहीं जुड़े हों, पादरी, और उनकी नजर में उनका पेशवाई जो है वो वैल्यूलेस होता है। फिर पेशवा इसलिए भी वैल्यूएबल है क्योंकि लिखा है कि वो आपकी रूहों के लिए फायदामंद है। कुछ चीजें जिस्म के लिए फायदामंद है, लेकिन ये वो शख्स है, ये वो पर्सन है जो आपकी रूहों को फायदा देता है, आपकी रूहों की ग्रोथ के लिए, आपकी रूहों की डेवलपमेंट के लिए इंटरसेशन करता है, दुआएं करता है। इसलिए इनके ताबे रहो। और फिर यही पेशवा जो है, जो खिदमत करते हैं, अगर ये आपके दिल के अंदर इज्जत ना पा सकें तो उनकी दुआएं आपके लिए किसी काम की नहीं रहेंगी। इसको समझना है, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? अपने पेशवाओं के ताबे रहना। पहली क्या है? बाकायदगी से जमा होना है। क्या? बाकायदगी से जमा होना है। मेहरबानी करके अपनी काम अतवार ना पाया करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आपका जितना मर्जी अहम काम है और दिन पे छोड़िए। लोगों को कहिए अगर आप शादियां संडे को रखेंगे हम नहीं आएंगे, अगर आप अपने फंक्शन संडे को रखेंगे हम नहीं आएंगे। फंक्शन तो छोड़ो, कई तो पिकनिक मनाने संडे को चले जाते। जो पिकनिक मनाने गया सी, उनके नजर में जीरो वैल्यू है, जीरो चर्च की। सो दैट इज द सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है चर्च के लोगों ने आपस में इत्तेफाक से रहना है। यू नीड टू लिव इन यूनिटी। चर्च को, क्योंकि कई दफा देखा है चर्च के लोग हैं, चर्च के मेंबर हैं, चर्च में ही आते हैं, बाकायदगी से भी कई आते हैं, लेकिन एक दूसरे के हवाले से उनके दिलों, फिर 15 साल बाद कढ़न के मैल, मैनू ओदा तो ठीक है पर तेरी ओ गल उदों नहीं चंगी लगी। इसका मतलब क्या? इकट्ठी करके रखी हुई है। नो प्लीज, यू मस्ट हैव यूनिटी अमंग यू। आपके दरमियान यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, इत्तेहाद का। आइए कलाम में से एक हवाला देखेंगे, यूहन्ना की इंजील 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत, जॉन 13 वर्स 35।
यूहन्ना 13वां बाब उसकी 35वीं आयत में क्या लिखा? अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे, दैट इज द साइन ऑफ अ चर्च मेंबर। ये चर्च मेंबर की निशानी है कि अगर उनकी आपस में मोहब्बत है। कई दफा मुंह दे आप बहुत कुछ कही दे, अंदरों फोल के वेख लो। देखा ना, हम कई दफा दो बैठे हों तो तीसरे मेंबर की चुगलियां, बड़ा हमारा महबूब मशगला होता है। वो तो बंदा तो ठीक होती, बुढ़ी नहीं ठीक। बुढ़ी बड़ी चंगी है पर बंदा कहे काम दा नहीं। हाँ, यही कुछ चर्च के लोग और चर्च के लोगों के अंदर है। हम एक दूसरे की अजीब अजीब बातें करते हैं, अजीब अजीब हमारी जुबानें होती हैं। एंड वी आर बिलीवर्स, वी आर चर्च मेंबर्स। प्लीज इस बात को समझना है, इस बात को सीखना है, क्योंकि अगर हमारे अंदर जो है वो मोहब्बत नजर नहीं आएगी, अगर हमारे दरमियान यूनिटी नजर नहीं आएगी, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त बातें करते रहेंगे, अगर हमारी आपस में ये गानगत नहीं है, कहिए दो गुना बनी होंगी दो गुना बिगड़ी होंगी। नो, इफ यू आर द मेंबर ऑफ चर्च, अगर आप चर्च के लोग हैं, चर्च के मेंबर हैं, प्लीज आपने उसी तरह इक्वली जो है वो एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। दैट इज द साइन। और फिर जो है ये हमारी मोहब्बत जो है वो गैर ईमानदारों के लिए जो है वो भी निशानी है। कई नहीं देखे ना, गैर ईमानदार मेरे अल वेखो जरा, गैर ईमानदार गल्लां करदे हुंदे मां उंज ते गिरजे जांदे, ਜਿਹੜੀਆਂ दो जानदियां ना, देखिए कि पहले लंघ के गई ते दूजी आपस च नहीं बुलांदियां पर जांदियां, हेलो जांदियां उंज बड़ा हालेलुया दे नारे लाणगे, पर ਜਿਹੜੀਆਂ दोवें फैमिलियां जानदियां। हम एक धब्बा बन जाते हैं खुदा के काम के लिए, हम एक ऐसा दाग बन जाते हैं खुदा के काम, और ये ठोकर का बायस है। हम ठोकर का बायस बनते हैं, कभी कभी अपनी मुखालफतों की वजह से, कभी कभी अपनी नाचाकियों की वजह से, अपनी जो है वो बेइत्तेफाकियों की वजह से हम खुदा के काम के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। प्लीज खुदा दुआ किया करो, रोज दुआ किया करो। अपनी जितनी चर्च फैमिलीज आप देखते होते हो उनके लिए दुआ किया करो कि खुदावंद खुदा मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत डाल, मेरे अंदर खुदावंद खुदा इनके लिए मोहब्बत पैदा हो। अगर नहीं है तो पैदा हो, अगर है तो खुदावंद बढ़ती जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इत्तेफाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वी आर नॉट चर्च। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी? नंबर 1 क्या है जी भाइयों? नंबर 2 क्या करना? पेशवाओं के। नंबर 3 आपस में। और नंबर 4 खुदावंद के काम के लिए फराख दिली से देना। क्या करना? इसका मतलब क्या है? अपने हदिये ते अपनियां दह यकियां पूरियां देनियां। प्लीज, इफ यू आर द मेंबर ऑफ द चर्च, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितने लोगों को ऐसे पादरी पसंद है जो इंटरनेट पे झूठ बोलते हैं? आप में से जितनों को पसंद है, जब कमाते हैं पैसे और झूठ भी बोलते हैं? कितनों को पसंद है? किसी ने नहीं पसंद। वो वैसे पसंद नहीं कि सिर्फ बढ़ना पसंद है। हाँ, नहीं ना पसंद। कितनों को पसंद है आपके पादरी जो है वो लोगों से कर्जे मांगे? हेलो, कितनों को पसंद है कि आपका पादरी जो है वो 5 बजे तक चपरासी की नौकरी करे और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें खिदमत करे? तो आप गौर करना है कि अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं है तो पादरी अपने घर के लिए क्या करेगा?
हेलो, आपके ख्याल में एक घर का रोजाना का खर्चा क्या होगा? शाबाश, जल्दी जरा कबीलदारा को पूछते बाजी, जल्दी बोलना। 2-3 हज़ार। बोलो बोलो बोलो, शाबाश। चलो भाइयों को पूछते, तुम मैं लगता खर्चा ही नहीं करते। हाँ जी, बथेरा कितना कर अंदाजा लाओ। हाँ जी, 1500। हाँ जी बाजी खालदा, इना किन्ना? तो किन्ने बड़े दसे जिन्हें अंदाजा था। हाँ जी भाई दानिश। अब अगर एक पादरी जो है 2000 रुपया खर्च करे तो हफ्ते के कितने पैसे बनेंगे? और एक पादरी अगर विजिट करे और वो एक दिन में जो है वो 5 घरों का विजिट करे और वहां से वो 100 रुपया ले तो कितने हजार बन गए? अब गौर करना है, क्योंकि हमें सारी उम्र देने नहीं आया। हम समझे पादरी की अलग से कोई फैक्ट्री भी चल रही है और वो हमें पसंद नहीं है जो इंटरनेट करते हैं। हेलो, वो पसंद है? भाई साहब सुनिया तुसी भी इंटरनेट करते हो? अच्छा, आपने बड़ा गलत सुना है भाई साहब, चले ही। प्लीज इसको समझना है, क्योंकि हमारे दिमाग में, और अगर गौर करें हदियों के अलावा दाई क्यों पे, हाँ तो चर्च की मगर टोटल फैमिली काउंट करूं तो शायद 4 से 5 होंगी जो टाइट देती हैं। टाइट की बात कर रहा हूं, वो नहीं जरा तुसी 1000 रुपया 2000 रुपया नहीं, आपकी कमाई, टोटल कमाई पे। दैट इज बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चर्च। उन्हें पता ही नहीं होता और सारी उम्र हमें ये करने नहीं आया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपका पासबान, आपका पेशवा, आपका लीडर जो है वो प्रॉपर ईमानदारी से जो है वो अपनी लाइफ को गुजारने के लिए उसी के अंदर, क्योंकि लिखा है जो खिदमत करते हैं, खिदमत करने वाला खिदमत से गुजारा करे। हम समझते हैं साढ़े लिए महंगाई बड़ी है, पर पादरी लिए कोई महंगाई नहीं। क्यों? क्योंकि हम पादरी को हदिया 100 रुपया देते हैं। प्लीज रिमेंबर, इसको समझो। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चर्च की, चर्च भूल गया, क्योंकि चर्च को बहुत सारे और काम करने हैं, चर्च को और बहुत सारी चीजों की फिक्रें हैं। वजह क्या है? क्योंकि ना हम बाकायदगी से आएंगे, ना पेशवा हमारी जिंदगी के अंदर को वैल्यू रखता है, ना पेशवा के साथ हमारी जहनी रूहानी दिलचस्पियां और यूनिटी है। इसी वजह से हमारे लिए हदियों का भी कोई रुझान नहीं। लो जी हूं खुदा कड़ा पैसे मांगता है। हाँ, आइए पढ़ते हैं हवाला, फिर देखते हैं मांगता है या नहीं मांगता। पहला कुरिन्थियों उसका 16वां बाब उसकी दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी दूसरी आयत। हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदे न करने पड़े। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा, ये एक दूसरा हवाला है, दूसरा कुरिन्थियों 9वां बाब 6ठी 7वीं आयत। ठीक है, ये पहला हवाले के बाद दूसरा हवाला पढ़ रहा हूं मैं, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 and 7। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को। प्लीज इसको समझो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर है। हमारा पादरी बहुत ईमानदार हो,
ہمارا پادری جو ہے وہ بڑا 30 مارخاں ہو، ہمارا پادری جو ہے وہ انٹرنیٹ بھی نہ کرے، ہمارا پادری جو ہے کچھ بھی ایسا نہ کرے. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ وہ فراخ دلی تو بعد دی گل ہے، جڑا ٹھہرایا ہوا وہ بھی ہمارے دماغوں میں نہیں ہوتا. جو کلام نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ہماری زندگیوں سے ریلیز نہیں ہوتا، وہ سارے لیے وقت پہ ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو بڑا اس میں پوچا ڈالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. پوچے والے بھی میں نے دیکھے، 1000 دے کے کہہ کہ واہ واہ، سمجھے کہ کیا ہے، ہو گیا. 2 دے کے ہو گیا. پلیز اس پہ غور کرنا ذرا. کبھی کبھی یہ پادری بشارت صاحب ہدیہ گنتے تھے، آج کل سونو جو ہے وہ گنتا ہے ہدیہ. تو ہدیہ سنڈے کو ہوتا ہے کتنا، 2000، زیادہ چھاڑ ماری تو 2500 تو چلا گیا. تو آپ کے خیال میں 2500 کتنے دنوں کا خرچہ ہے؟ ہاں جی، تو 6 دن پادری کی کرے، تو جب وزٹ بھی کرے تو 500 مل جائے، تو باقی کی کرے؟ اس کو سمجھو. That's very important. کیونکہ بہت دفعہ ہماری زندگیوں کے اندر کوئی بھی ڈسپلن نہیں ہے. ہم چرچ ہیں، چرچ کے لوگ ہیں، لیکن زندگیوں میں ڈسپلن کوئی نہیں ہے. رسپانسبلٹی ہے چرچ کی، ذمہ داری ہے چرچ کی. اور ایک بات اور غور کرنا ذرا، کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں نہ دیتے اور شکوا، اور پائی صاحب تو اس سے ادھر جاندے ہو جدھر تک بڑھتے بہتے پیسے مل دے. ہاں، اس طرح کے شکوے بھی آتے ہیں. ساڈے ہل تسی وزٹ ہی نہیں کرتے. ان کے خیال میں دوسرے ایک جیسا ہی حال ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہی کچھ نہیں. ہماری زندگی کے اندر اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اس کو ڈسپلن بناؤ. یہ ذمہ داری ہے چرچ ممبر کی. ایک چرچ کے ممبر، ایک چرچ ممبر فیملی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہدیے، اپنی ٹائٹ جو ہے وہ دے، تاکہ خداوند کے گھر میں خوراک ہو. کیونکہ چرچ آپ نے دیکھا جو مختلف کلیسیا، اور آج پاکستان کے اندر 80% کلیسیا اسی طرح کی ہیں. لیکن جن چرچز کے اندر دیتے ہیں، کسی نے دیکھا کسی چرچ کے اندر دیتے ہیں اور وہ کیسے دیتے ہیں؟ ہاں، اسلام آباد والے، کراچی والے، لاہور والے یہ باتیں بتاتے ہیں اور ایسے کر دیتے ہیں، مثالیں بڑی دیتے ہیں. اپنی پاویں ٹائش دین تے پاویں نہ دین. سو دیٹ از 4th responsibility. اور بہت ساری ہیں لیکن ایک کی بات کریں گے اینڈ وی ول گو اہیڈ. 5ویں ذمہ داری جو ایک چرچ ممبر کی ہے وہ ہے باقاعدگی سے اپنے لیے اور چرچ کے لیے دعا کریں. اپنے لیے اور چرچ کے لیے دعا باقاعدگی سے، ڈیلی بنیادوں پہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور چرچ. انٹرسیشن کی ذمہ داری ہے اس کی. آپ کو یاد ہے جب پطرس کو پکڑا ہوا تھا، پطرس قید میں تھا، کیا ہو رہا تھا؟ اور پالوس رسول بھی کہتا ہے میرے لیے دعا کرو. لیڈر ہے وہ. پادری کے لیے، چرچ کے لیے، چرچ فیملیز کے لیے باقاعدگی سے دعا کرو. ذمہ داری ہے چرچ کی. آئیے حوالہ دیکھتے ہیں. ایک مشہور حوالہ جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اس کو صرف آپ لکھ سکتے ہیں. پہلا تسلونیکیوں 5واں باب 17 ہے، بلا ناغا دعا کرو. اور کولوسین چیپٹر 4 ورس 2، کلسیوں اس کا 4 باب 2 آیت میں، دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. We need to pray for the church. کیونکہ ہم چرچ میں نقص نکالنے میں چیمپئن ہیں، لوگوں میں خامیاں ڈھونڈنے میں چیمپئن ہیں، خامیوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن دعا کرنے میں ہم ویک ہیں. And we need to pray for the church. ہمیں چرچ کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے.
हमें अपने पासबान के लिए दुआ करने की जरूरत है। वन मोर रेफरेंस, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 12, रोमियो 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उम्मीद में खुश, मोहब्बत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। चर्च को प्रेयर करनी है, चर्च मेंबर को चर्च के लिए दुआ करनी है, तो दुआ करने में मशगूल रहना है, दुआ करने में लगा रहना है, ताकि उनकी दुआओं के वसीला से चर्च खुशहाल हो, चर्च शादमान हो। और चर्च की एक और बहुत अहम जिम्मेदारी जिसका तज़किरा शायद मैं करना भूल गया, प्लीज, चर्च ने कई दफा हम समझते हैं कि चर्च जड़ा वो सिर्फ पादरी दा ते पादरी ने करना, चर्च ने और चर्च मेंबर्स को दावत देनी है। किसी का याद है आपको कि किसी ने किसी को दावत दी थी बाइबल के अंदर? हाँ, यीशु मसीह के शागिर्दों में नतनेल की स्टोरी पढ़ी है ना, लेके आया गया उसको दावत दी। चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आने लगे कहते चर्च दे मैंबर कहे 2-4 लोगों को होर ले आने की कोशिश करो, कायल करो। असी दूसरियां बेशुमार लोगों ने गप्पा मारते, कभी किसी ने इधर नु दावत पता दी है कि नहीं दी कि भाई जी गिरजे, और उनके लिए दुआ करनी, उनको लेके आना। इस तरफ नहीं जाते। प्लीज, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ योर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरों को चर्च के लिए इनवाइट करें, ताकि लोग जाने, लोगों को समझ आए, लोग कलाम सुने, लोगों को पता हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च। और जब हम चर्च में जमा होते हैं तो खुदावंद के नाम को जब हम जलाल देते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट ऑल एक्टिविटी, सारे सरगर्मी का जो है वो पर्पस और इसका अजर क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है, वो सारी दूसरे लोगों की समझ में भी आए। आमीन। सो आज हमने क्या देखा? एक चर्च मेंबर की नंबर 1 क्या करना? बाकायदगी से चर्च आना। नंबर 2 अपने पेशवा के ताबे रहना। नंबर 3 आपस में इत्तेफाक से, मोहब्बत से रहना। नंबर 4 अपने हदिया जात या जो देने का जो भी जिम्मेदारियां उसको फराख दिली से देना। और नंबर 5 एक दूसरे के लिए दुआ करना। और नंबर 6 हमने देखा कि हमें दूसरे लोगों को भी चर्च में लेकर आना है, उनको इनवाइट करना है, ताकि खुदावंद के घर में शागिर्दों का, कलीसिया मेंबर्स का और इजाफा हो। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और कुछ देर के